Students, welcome to the lecture number 4 of Microcontroller and Embedded Systems MCES subject. ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਹੈ 3 ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ 8051 ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੀਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਵਾ ਉਹ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੰਟਰਨਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ CPU ਲੱਗਾ ਵਾ ALU। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਲੋਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਬਲੋਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਲੋਕਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ 8051 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ CPU ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਡੇਟਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ 8051 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8051 4 ਪੋਰਟਸ ਹੈ, P0, P1, P2 ਤੇ P3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ P0 ਹੈ, ਪੋਰਟ 0 ਦੀ ਲੈਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟ 2 ਦੀ ਲੈਚ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਰਟ 1 ਦੀ ਲੈਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਰਟ 3 ਦੀ ਲੈਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਚ ਹੈ ਇਹ ਕਨੈਕਟਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਰਟ 0 ਦੀ ਲੈਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਰਟ 0 ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟ 2 ਦੀ ਲੈਚ ਹੈ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਰਟ 2 ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨਾਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੋਰਟ 1 ਦੀ ਲੈਚ ਪੋਰਟ 1 ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨਾਲ ਤੇ ਪੋਰਟ 3 ਦੀ ਲੈਚ ਪੋਰਟ 3 ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਨਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ P0.0 ਲੈ ਕੇ P0.7 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟ 2 ਦਾ ਵਾ 2.0 ਲੈ ਕੇ 2.7 ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟ 1 ਹੈ 1.0 ਲੈ ਕੇ 1.7। ਇੱਥੇ 3 ਹੈ 3.0 ਤੋਂ 3.7। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਮ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਬਿਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਹੈ EEPROM ਜਾਂ ਰੋਮ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੈਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੈਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੈਮ ਐਡਰੈਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਰੈਮ ਨੂੰ, ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬੱਸ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਹ ਡੇਟਾ ਬੱਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡੇਟਾ ਬੱਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡੇਟਾ ਬੱਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੈਰੀਫਰਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਰੈਮ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਰੈਮ ਹੈ, ਪੋਰਟ 0, ਪੋਰਟ 1, ਪੋਰਟ 2 ਅਤੇ ਪੋਰਟ 3 ਦੀ ਲੈਚਿਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਡੇਟਾ ਬੱਸ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡੇਟਾ ਬੱਸ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਰ ਹੈ ACC, ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ B ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ TMP2, ਇਹ ਆਪਣਾ TMP1 ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਰੀ 1 ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ 2 ਰਜਿਸਟਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਸ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ 1 ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ 2, ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ALU। ਦੇਖੋ ALU ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪ 2 ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ 2 ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ 1 ਤੋਂ। ਫਿਰ ALU ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 2 ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡੇਟਾ ਬੱਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਡੇਟਾ ਬੱਸ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ PSW ਨੂੰ। PSW ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇਟਸ ਵਰਡ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਡੇਟਾ ਬੱਸ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, PCON, SCON, TMOD, TCON, T2CON, TH0, TL0, TH1, TL1, TH2, TL2 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਸ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਸ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਰੈਸ ਰਜਿਸਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਮਰੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਰੋਮ ਅਤੇ EEPROM ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਰੈਸ ਰਜਿਸਟਰ। ਰੈਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਰੈਮ ਐਡਰੈਸ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਰੈਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੋਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਰੈਸ ਰਜਿਸਟਰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਫਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਬਫਰ, ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਲ ਬਫਰ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ
किसी डिवाइस ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇ ਡੇਟਾ ਬਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪੀਸੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਰ मतलब प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंटर है, ये अपना प्रोग्राम काउंटर है, ये अपना की है DPTR मतलब डेटा पॉइंटर। डेटा पॉइंटर भी अपना इतने डेटा बस नाल इंटरफेस किया है आप। उस तो बाद इधर आ जाओ, इतने आप ओसीलेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अपना लगा हुआ देखो तो अगे जैसे शेयर सिंबल है वो अपना क्यूआर क्रिस्टल का है, ये दो अपने की लगे कैपेसिटर्स। तो जोड़ा ओसीलेटर है वो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है 8051 नू, ये अपना लगा हुआ टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। इतने अपना की है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो कि स्टोर करेगा इंस्ट्रक्शन नू, रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन का, यह भी इंटरनली यूज़ होंदा है, असीं इहनूं डायरैक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो जो टाइमिंग एंड कंट्रोल है ये फंक्शन देखो किहड़े इतने PSEN ALE EA ते RST, ये फर्दर आप स्टडी करांगे। PSEN है प्रोग्राम स्टोर इनेबल, ALE है एड्रैस लैच इनेबल, EA है एक्सटर्नल एक्सैस, RST है रीसैट। तो इस तो बाद इत्थे देखो दो पिन लगियां एक VCC एक VSS। जी VCC है इत्थे आपां शो कर रहे हैं कि इतना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 5 वोल्ट्स, जी VSS है अपनी की है ग्राउंड है जी, ठीक है। तो ये अपना बेसिक आर्कीटैक्चर है जो इंटरनल किदां डेटा फ्लो हो रहा है, किदां किदां आपस कनैक्टेड है सारे ब्लॉक्स, ये अपना 8051 का आर्कीटैक्चर। इनू अच्छे नाल स्टडी करके अपनी कॉपी ड्रॉ कर लियो इनू। बस ध्यान रखियो कि 4 पोर्ट्स अपने को, पोर्ट 0 पोर्ट 1 पोर्ट 2 तो पोर्ट 3, ऊपर से अपने पोर्ट 0 तो पोर्ट 2 है, ये लैचिज है। फिर जो लैचिज हैं वो पोर्ट 0 ड्राइवर्स नाल आप इंटरफेस की इतने जिद्दां पोर्ट 2 की आप की है पोर्ट 2 ड्राइवर्स नाल। फिर बाहर आप कट रहे उन्होंने पिनस क्योंकि अपने 8 बिट के पोर्ट्स है, तो 0.0 लैके 0.7 है, 2.0 लैके 2.7 है, इदां ही पोर्ट 1 तो अपना पोर्ट 3 हो गया नीचे। तो इतने कितने इंटरफेस किए ऊपर डेटा बस नाल, ठीक है। जो लैचिज है वो डेटा बस नाल ते पोर्ट दी ड्राइवर्स नाल इंटरफेस है बस मीनस वो इंटरमीडिएट है लैच जी है। तो रैम है, रैम नू एड्रैस प्रोवाइड कौन करता वा, रैम एड्रैस रजिस्टर वखरा एक, इदां रोम है अपनी प्रोग्राम मैमरी, इनू एड्रैस कौन प्रोवाइड करता है प्रोग्राम एड्रैस रजिस्टर। ये अपना सीरियल बफर है जो कि सीरियल कम्यूनीकेशन वास्ते आप यूज़ करांगे इनू सीरियल बफर नू। अगे अपना PC इंक्रीमेंटर तो प्रोग्राम काउंटर है, फिर अपना की है DPTR डेटा पॉइंटर। तो ये जोड़े अपने लगे है ये अपने की है स्पैशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं, इन्होंने पूरे डिटेल स्टडी करांगे अगे। ये अपना स्टैक पॉइंटर है, ये अपना देखो इधर ये अपना ALU लगा हुआ है, ALU इनपुट कितों आ रही है TMT2 तो TMT1 तो, ठीक है। जो TMT1 जो अपना टैंपरेरी 1 रजिस्टर है ये कितों ले रहा डेटा, ये ले रहा वा डेटा बस तो। TMT2 जो कितों ले रहा है यहाँ तो लेगा एक्यूमुलेटर तो, या फिर ये डेटा बस तो ले रहा है, ठीक है। तो जोड़ा अपना ALU है इतने 2 इनपुट्स आ रही हैं ALU अपना होंदा वा अरिथमैटिक लॉजिक यूनिट जो कि प्रोसैसिंग करता हुआ बेसिकली, जो कि अरिथमैटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन कैरी आउट करेगा। तो ये इनपुट्स कितों आ रही हैं इन 2 इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं आप, एक करते हैं टैंपरेरी 1 रजिस्टर तो, दूसरी आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं टैंपरेरी 2 रजिस्टर तो। तो फिर ये प्रोसैसिंग करके आउटपुट देगा, एक देगा आउटपुट जो रिजल्ट आएगा वो देगा ये डेटा बस में सीधा एक जोड़ा है कंडीशनस जड़ियाँ मैं उस रिजल्ट दी की कंडीशनस है वो देगा PSW नू। PSW अपना क्या है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो मान लो आप 2 नंबरस है, आप 2 नंबरस नू माइनस कर रहे हैं, मान लो डेसिमल 2 नंबर है 5 तो 5, तो 5 इधर आ गया इनपुट, एक 5 इनपुट इधर आ गई, तो 5 - 5 करेगा, अब आप माइनस करना हो सबट्रैक्शन करनी है, तो 5 - 5 0 हो गया, तो 0 आउटपुट कितने देगा इतने डेटा बस नू 0 आउटपुट दे देगा। लेकिन हुण 0 आउटपुट आया अपने को जोड़े फ्लैग्स होंगे है जो कंडीशनस है वो PSW स्टोर हो गया, फिर इतने शो करेगा कि जी आउटपुट है रिजल्ट की क्या आई है 0 आई है, ठीक है। इस अपना की होंगे फ्लैग्स होंगे जो कि रेज होंगे हाई होंगे अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट कि रिजल्ट की की कंडीशन है। जो अपने को 0 फ्लैग होंदा है वो की शो करता है कि आउटपुट 0 है कि नहीं है। जब इतने देखिए सबट्रैक्शन 5 - 5 0 हो गया अपने को, आउटपुट 0 होगी, तो रिजल्ट अपना 0 आ रहा है इतने, तो डेटा बस जा रहा है। तो कंडीशन क्या आ रही है रिजल्ट की कि जो 0 फ्लैग है वो की है 1 है, मीनस आउटपुट की है 1। तो अपने होर भी फ्लैग्स अवेलेबल होंगे 8051 जो आप अगे फर्दर स्टडी करांगे। तो इतने अपना एक है रजिस्टर अपना मैं B रजिस्टर, एक अपना एक्यूमुलेटर है इतने जिथे आप सारी जो अपनी रिजल्ट्स है या अपना एक जो सोर्स ऑफ ऑपरेंड है वो आप स्टोर करते हैं एक्यूमुलेटर विच।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ B ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं ALU के बारे, अर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट तो नाम तो क्लीयर हो रहा है, ये जरा कि ऑपरेशंस कैरी आउट करेगा। एक करेगा अर्थमैटिक ऑपरेशंस, दूसरा करेगा लॉजिकल ऑपरेशंस। इट परफॉर्म्स 8 बिट अर्थमैटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। मीनस अपना जो ALU है वो 8 बिट अर्थमैटिक या लॉजिकल ऑपरेशन नू परफॉर्म करेगा, क्योंकि अपना 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर कितने बिट का है वो 8 बिट का होंगे। The two inputs of ALU are given from the temporary registers TMP1 and TMP2। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇਨਪੁਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ALU ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ TMP1 ਤੇ TMP2। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ TMP1 ਹੈ, TMP1 ਆਪਣਾ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਡੇਟਾ, ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਡੇਟਾ ਬਸ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ TMP2 ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਡੇਟਾ, ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਡੇਟਾ ਬਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, दोनों फिर आप इनपुट्स किन्नू प्रोवाइड कर रहे हैं ALU नू। तो इट्स आउटपुट इज़ गिवन टू द इंटरनल डेटा बस। जी प्रोसैसिंग करता वा ALU वो आउटपुट किन्नू दिंदा वा, वो दिंदा वा वापस डेटा बस नू। इट आल्सो गिव्स द कंडीशन ऑफ द रिजल्ट इन फ्लैग रजिस्टर विच इज़ कॉल्ड एज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड PSW। हुण ALU जड़ा वा असीं देखिया पिछले डायग्राम च भी कि दो इनपुट्स आ रही हैं टैंपरेरी 1 रजिस्टर तो टैंपरेरी 2 रजिस्टर तो, फिर ये प्रोसैसिंग करके जो रिजल्ट है वो दे रहा है वापस इंटरनल डेटा बस नूं। तो जोड़ा फ्लैग्स है जोड़े मान लो कोई रिजल्ट आ रहा है वो की कंडीशनस है रिजल्ट की, वो स्टोर होणगियां फ्लैग रजिस्टर जिन्होंने आप कहने हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड PSW। जिदा आप एग्जाम्पल देखिए कि आप मान लो 2 नंबर ले लिया, दोनों का जो वैल्यू 5 है, आप दोनों सबट्रैक्शन कर रहे हैं तो 5 - 5 0 अपना रिजल्ट आ गया। तो जो रिजल्ट है वो चल जाएगा डेटा बस नूं 0। तो जो हूँ 0 रिजल्ट आया हुआ है तो अपने को एक फ्लैग होंदा है 0 फ्लैग, जो कि शो करता हुआ है कि आउटपुट 0 है कि नहीं है। जो 0 है तो फ्लैग 1 हो जाता है, जो आउटपुट अपने को 0 नहीं है तो फ्लैग वो 0 हो जाता है। तो फिर 0 फ्लैग की हो जाएगा 1 हो जाएगा। अपनी की ये कंडीशन है जो कि स्टोर है PSW। PSW इज़ अ 8 बिट रजिस्टर विच कंटेन्स इंडिविजुअल फ्लैग बिट्स। जोड़ा PSW 8 बिट का रजिस्टर है, ये की है 8 जोड़े अपने मतलब डिफरेंट फ्लैग्स है ये, जो कि एक बिट के है। दोनों मैं गल की 0 फ्लैग की, 0 फ्लैग भी 1 बिट का वै, मीनस 8 बिट्स विचों 1 बिट जी 0 फ्लैग वास्ते है, जो कि शो करता है कि डेटा जो अपना रिजल्ट आया वै वो डेटा जोड़ा 0 है कि 1 है। जो 0 रिजल्ट आ रहा है अपने को तो 0 फ्लैग जोड़ा वै वो उत्थे बिट 1 हो जाएगी। जे अपने को रिजल्ट 0 नहीं आ रहा वै तो जी 0 फ्लैग की बिट है वो 0 हो जाएगी। हुण आपां अगे चलते हैं, अपने को एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर भी अपना जोड़ा वै आर्किटेक्चर च लग्या होया वै, ये भी अपना एक रजिस्टर है जिन्होंने आपां A कहने हैं। इट इज़ अ 8 बिट रजिस्टर दैट स्टोर्स द रिजल्ट्स ऑफ अर्थमैटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। जोड़ा एक्यूमुलेटर है ये 8 बिट का रजिस्टर है, ये की स्टोर करता है जोड़ा अपना रिजल्ट आया प्रोसैसिंग तो बाद। जिदा आप गल कर रहे थे सबट्रैक्शन की, 2 नंबर सिमिलर नंबर पर ले ले 5 तो 5 - 5 0 रिजल्ट आया, वो कितने स्टोर होएगा, वो स्टोर होएगा एक्यूमुलेटर च। पहले रिजल्ट जाएगा डेटा बस च, डेटा बस तो थ्रू फिर हो जाएगा अपना एक्यूमुलेटर विच। तो असी डायग्राम देखिया सीगा, ये देखो जो अपना ACC है ये अपना एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर की है एक तो देखो डेटा बस नाल कनैक्टेड है, जो ALU का जो रिजल्ट आया रिजल्ट की है डेटा बस तो होंदे हुए अपने को वापस कितने आएगा, वो स्टोर होएगा एक्यूमुलेटर विच। ठीक है, तो एक जरा सोर्स ऑपरेंड है, देखो ALU च 2 वैल्यूज़ देनी है ना, एक TMP1 थ्रू जा रही है, एक TMP2 थ्रू जा रही है। जो TMP2 रजिस्टर है अपना ये जी वैल्यू है एक एक्यूमुलेटर तो आ सकती है या फिर डेटा बस तो आ सकती है। ठीक है, मेरी एक सोर्स ऑपरेंड अपना की है वो एक्यूमुलेटर है। ठीक है, तो अगे अपना है B रजिस्टर। B की अपना इट इज़ अ 8 बिट रजिस्टर यूज टू परफॉर्म मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑपरेशंस टुगैदर विद एक्यूमुलेटर। जोड़ा B रजिस्टर है वो अपना 8 बिट का रजिस्टर है, एक ही परफॉर्म करने वास्ते यूज़ करते हैं इन्हों आप यूज़ करते हैं मल्टीप्लीकेशन तो डिवीजन वास्ते टुगैदर विद एक्यूमुलेटर। मीनस जोड़ा एक रजिस्टर अपना एक्यूमुलेटर है तो जोड़ा B रजिस्टर है
ये आप दोनों यूज़ करते हैं कर वास्ते मल्टीप्लीकेशन तो डिवीजन वास्ते। मीन जो आप मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करनी है 8051 तो आप सिर्फ दो ही रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं वास्ते, एक ए तो एक बी। मतलब दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक 3 एक 5 है, तो ए च आप 3 पावांगे तो 5 च आप बी च आप 5 पा देंगे। मतलब आप कोई होर रजिस्टर यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ ए तो बी कर सकते हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਏ ਤੇ ਬੀ ਤੇ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਰਜਿਸਟਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਟੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ। ਇਟ ਇਜ਼ 8 ਬਿਟਸ ਵਾਈਡ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੂ ਦ ਸਟੈਕ इन द इंटरनल रैम। ਹੁਣ ਸਟੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਕ ਦੇਖੋ। ਸਟੈਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ 'ਚ। ਸਟੈਕ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਵੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਮ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਵੈ ਰੈਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡੇਟਾ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ ਉਹ 8 ਬਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸਟੈਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਸਟੈਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ ਸਟੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ 'ਚ ਜੋ ਕਿ 8 ਬਿਟ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 8 ਬਿਟ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਟਸ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ 128 ਬਾਈਟਸ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਐਡਰੈਸ ਬਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 128 ਬਾਈਟਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਬਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ 2 ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਐਡਰੈਸ ਬਸ ਦੀ ਬਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ 8051 'ਚ 16 ਬਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈ ਤਾਂ 2 16 ਹੁੰਦਾ ਵੈ 64 ਕਿਲੋ ਬਾਈਟਸ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 128 ਬਾਈਟਸ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੈਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ 128 ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 128 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 2 7 ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 128। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8 ਬਿਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ 8 ਬਿਟ ਦਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਐਡਰੈਸ ਬਸ ਆਪਣੀ 16 ਬਿਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਕਿੰਨੇ ਬਿਟ ਦਾ ਵਾ 8 ਬਿਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਰੈਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 128 ਬਾਈਟਸ। ਸਟੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ 'ਚ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੈਕ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਟੈਕ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਵਾ ਜੋ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਰ। ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟਰ, ਸਟੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ 16 ਬਿਟ ਰਜਿਸਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਸਟੋਰਿੰਗ ਐਡਰੈਸ। ਤੇ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਬਿਟ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ 16 ਬਿਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਰੈਸ ਬਸ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੇ ਬਿਟ ਦੀ ਹੈ 16 ਬਿਟ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 8051 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਰ 'ਚ ਜੋ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਬਿਟ ਦਾ ਵਾ 16 ਬਿਟ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਪੋਰਟ 0 to 3 ਲੈਚਿਸ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਪੋਰਟਸ ਹੈ 8051 'ਚ, 4 ਲੈਚਿਸ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਰੇਕ ਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੈਚ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗਾ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੋਰਟ 0 ਲੈਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੋਰਟ 0 ਲੈਚ ਕਿਹਦੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਬਸ ਅਤੇ ਪੋਰਟ 0 ਡਰਾਈਵਰਸ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਪਿਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰੀਫਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ P0.0 ਲੈ ਕੇ P0.7 ਤੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੈਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡੇਟਾ ਬਸ ਤੋਂ ਪੋਰਟ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ 0 ਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੋਰਟ 2 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੋਰਟ 1 ਦਾ ਲੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੋਰਟ 3 ਦਾ ਲੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈਚ ਹੋ ਗਏ 4 ਲੈਚ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। P0, P1, P2, P3 are the SFR latches of ports 0, 1, 2 and 3 respectively। ਹੁਣ 4 ਪੋਰਟ ਹੈ 0, 1, 2, 3
P0 P1 टू P2 ਤੇ P3 ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ SFR ਲੈਚ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੋਰਟਸ ਤੇ। SFR मतलब है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ठीक है। P0 P1 P2 P3 की अपने SFR लैचेज है इस तरह के, ठीक है। मीनस जो अपने पोर्ट्स है 0 1 2 3 ये जो डेटा ट्रांसफर होएगा कितों होएगा, P0 P1 P2 तो P3 तो, ये अपने लैचेज है। राइटिंग 1 to a bit of a port SFR causes the corresponding port output pin to a high, मतलब कि जो आप एक लिखांगे, मान लो असी जी अपना पोर्ट है ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ 1 ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਿਟ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਰਾਈਟਿੰਗ 0 ਕੋਜ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਪੋਰਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਿਨ ਟੂ ਸਵਿਚ ਲੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ 0 ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 1 मतलब ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ, 0 मतलब ਲੋ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਨ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਪੁੱਟ the external state of a port pin will be held in the port SFR। मान लो ਆਪਾਂ 8051 ਨਾਲ ਕੋਈ एक्सटर्नल डिवाइस इंटरफेस ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 8051 ਥਰੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਨ ਹੋਏਗੀਆਂ ਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਐਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਪੁੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਚਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ डिवाइस ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਚਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਡ ਇਨ ਦਾ ਪੋਰਟ SFR, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਚਿਸ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਉਹ 0 ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟ SFR ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੈਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗੇਨ ਉੱਥੇ ਲੈਚ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਲੈਚਿਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਸ। ਰਜਿਸਟਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ CPU ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। A map of the on-chip memory area called the special function register space is shown below। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਸਾਡੀ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ B ਹੈ, B ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ACC ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, PSW ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇਟਸ ਵਰਡ ਹੈ, IP ਇੰਟਰਪਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, P3 पोर्ट 3 है, IE इंटरप्ट इनेबल है, P2 पोर्ट 2, SCON सीरियल कंट्रोल, SBUF सीरियल बफर, P1 पोर्ट 1 है, TCON टाइमर कंट्रोल है, P0 पोर्ट 0 है, T मोड टाइमर मोड, SP स्टैक पॉइंटर, TL0 टाइमर लोअर 0, TL1 टाइमर लोअर 1, TH0 टाइमर हायर 1 हायर 0, तो TH1 टाइमर हायर 1, TH0 टाइमर हायर 0 है, TH1 की है टाइमर हायर 1, DPL डेटा पॉइंटर लोअर, DPH डेटा पॉइंटर हायर, P कौन है पावर कंट्रोल। तो ये अपना टोटल 21 है। देखो ये 21 अपने SFR है जोड़े 8051 अवेलेबल है सारे आप की कर रहे हैं SFR स्पैशल फंक्शन रजिस्टर्स। कुछ आप ऑलरेडी इन्हों डिस्कस कर चुके हैं, कुछ अगे आने वाली वीडियो आप डिस्कस करा इन्हों। जो देखो इसे लिखे 80S तो लैके FFH ये अपनी है एड्रैस है, ये अपना की है एड्रैस है, मीनस कि हरेक रजिस्टर का एक पर्टिकुलर एड्रैस है। मीनस आप अगर आप P0 लिख रहे हैं तो वो 80H लोकेशन से डेटा स्टोर होएगा, ठीक है। तो हरेक लोकेशन जी 8 बिट दी है। देखो टाइमर अपने 16 बिट से ना, अपन अगे डिवाइड करते हैं फर्दर 8 बिट से। जिदा टाइमर 0 है वह TL0 टाइमर लोअर हो गया, TH0 टाइमर हायर 0 हो गया, TL टाइमर लोअर, TH टाइमर हायर। तो इदा टाइमर 1 का भी TL1 तो TH1 है। तो डेटा पॉइंटर भी अपना 16 बिट का होंगे है, उन्होंने भी डिवाइड किया कि 8 बिट च डेटा पॉइंटर लोअर तो डेटा पॉइंटर हायर। तो बाकी सारे जो रजिस्टर्स वो भी 8 बिट के ही है, ठीक है। हूँ 80H कि एड्रैस हो गया, ये हो गया P0 का। स्टैक पॉइंटर का एड्रैस की होगा 80 तो नैक्सट लोकेशन की आती है 81H। DPL की है 82H हो गया मेमोरी एड्रैस, ये DPH का
3H, ठीक है। इदां ही पीकॉन का की है 87H। बाकी जो एम्प्टी है वो खाली है, उससे कुछ भी स्टोर नहीं है, मीन सारे जोड़े आप यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। लोकेशन जड़ियाँ मैं मीन भी जी सब लिखा हुआ है वही अपनी लोकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बी रजिस्टर का की एड्रैस हो गया F0H, एक्यूमुलेटर का की हो गया E0H, PSW का की हो गया D0H। इदां ही सारे पर्टिकुलर सामने लिखे एड्रैसेस लिखे हैं। सीरियल बफर का की हो गया 9H, टी मोड का 89H। इदां TL0 का की होएगा, हुण जिहड़ा H है ना, H का मतलब की है हेक्साडेसिमल। हुण तुहानूं पता हेक्साडेसिमल च आपां किदां लिखते हैं, पहले 0 to 9 फिर A to F, क्योंकि इहदा जिहड़ा बेस है कितना हुंदा है 16 हुंदा है ना, मीनस जिहड़ा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वो 16 डिजिट्स होंदियां मैं 0 to 9 10 हो गई अपनियां, तो A to F अपनी 6 हो गई, ठीक है। 10 + 6 16 हो गई ना। तो जो 9 आएगा 9 तो बाद की आप लिखांगे A, 9 तो बाद A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F। हूँ टीकॉन का की है एड्रैस 88H, टी मोड का 89H, तो TL0 का की होगा 89 तो बाद 8AH, TL1 का 8BH, TH0 का 8CH, TH1 का 8DH, इतने के 8E तो 8FH जो खाली है, ठीक है। ये अपने की है स्पैशल फंक्शन रजिस्टर्स है, इन्होंने आप फरदर अगे वीडियोस आने वाली आप डिटेल स्टडी करांगे सारिਆਂ ਨੂੰ। कुछ आप ऑलरेडी ਦਾ ਜਿਹੜਾ बेसिक ओवरव्यू देख लिया, इदा P0, P1, P2, P3 अपने लैचेस है। एक्यूमुलेटर हो गया, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड हो गया, B हो गया, स्टैक पॉइंटर हो गया, डेटा पॉइंटर हो गया, टाइमर की गल करिए तो बाकी सीरियल कंट्रोल का सीरियल बफर है, ये आप सीरियल डेटा वास्ते यूज़ करते हैं, जो आप सीरियल पोर्ट यूज़ करांगे। तो टीकॉन, टी मोड, तो TL0, TL1, TH0, TH1 ये सारे टाइमर्स के रजिस्टर्स है रिलेटिड। तो जो अपना पीकॉन है पावर कंट्रोल है, पावर नाल रिलेटिड है। हूँ नैक्सट आप चलते हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक। आप जो डायग्राम है आर्कीटैक्चर तो देखिए सीगा, एक लॉजिक अपने को सीगा टाइमिंग एंड कंट्रोल का, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी लगा हुआ है, तो कुछ एक्सटर्नल पिनस भी लगी हैं जी अपन जोड़ियाँ PSENEA हो रही सी अपनी। आ देखो टाइमिंग एंड कंट्रोल अपना है नाल के लगा थे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर लगा हुआ है, ताकि ये PSEN ALE EA तो RST जो कि रीसेट थे, ये कि अपना एक्सटर्नल एक्सेस। तो EA तो PSEN की ऊपर बाहर है, एक्टिव लो पिनस होंगे, तो ALE तो RST की है एक्टिव हाई पिनस होंगे। हम देखो टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक अपना एच की है, द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द इंटरनल डेटा बस एंड इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस फैच्ड फ्रॉम प्रोग्राम मेमरी। हुण इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ये यूजर जोड़ा वा डायरैक्टली इन्हें यूज़ नहीं कर सकता, ये इंटरनल कितना यूज़ होंगे था, ये कनैक्ट होंदा वा इंटरनल बस नाल, जो अपनी डेटा बस हैगी है उन्हें कनैक्ट होएगा ये रजिस्टर जोड़ा वा। ये आप कायदे वास्ते यूज़ करते हैं, ਇਹਦਾ यूज़ की है, ये की स्टोर करता वै, ये इंस्ट्रक्शनस को स्टोर करता वै ਜਿਹੜੀਆਂ फैच की ਜਾਂਦੀਆਂ मैं प्रोग्राम मैमरी तो। तुसीं माइक्रो प्रोसैसर च पढ़े होना मैं फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। अपने को 3 स्टेजिस होंदियां मैं, पहले आप फैच करते हैं, फिर आप डिकोड करते हैं, फिर आप एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब आप किसी भी प्रोग्राम रन करते हैं तो प्रोग्राम जो अपना कोड है वो किद्दां रन होंदा वै, पहले जो मैमरी च अपना कोई प्रोग्राम स्टोर करता, पहले वो की करेगा कल्ली कल्ली इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, मीनस वो पिक करेगा उस मैमरी तो, उस तो बाद फिर डिकोड करेगा, मीनस उन्हें देखेगा कि वो इंस्ट्रक्शन किहड़ी है, उसका की काम है। जो मतलब आप एडिशन करनी है 2 नंबर की, पहले वो जी मैमरी च इंस्ट्रक्शन पई सी एडिशन वाली, उन्होंने पिक किया, उत्थों पिक करके फिर उन्हें उन्होंने डिकोड किया की काम है वह, जो एडिशन का काम है मीनस उन्हें 2 नंबर्स में ऐड करना है, फिर वो एग्जीक्यूट करता है उस स्टेज से आके, फिर वो 2 नंबर्स को ऐड करके वह रिजल्ट जोड़ा वै आउटपुट कट के उन्होंने स्टोर कर देंदा वै। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की करता वै, वो सिंपली जोड़ा वै इंस्ट्रक्शन स्टोर करता वै जोड़ियाँ आप फैच की जांदियां वै प्रोग्राम मैमरी तो। अगे अपना द टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक इज़ रिस्पोंसिबल फॉर इशूइंग ऑल द कंट्रोल्स ऑन द बसिस एज वेल एज इनसाइड द माइक्रो कंट्रोलर। जो टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक है वह काम की है, वो सारा कंट्रोल करता है जो अपनी बसिस है, डेटा बस एड्रैस बस होगी, तो जो माइक्रो कंट्रोलर जो अंदर लगे हुआ है सारा जो ब्लॉक्स अपने लगे हुए हैं, वो सारे की करता है कंट्रोल करता है। टू सिंक्रोनाइज जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स इट यूजेस क्लॉक सिग्नल दैट इज जनरेटेड बाय एन इंटरनल ऑसिलेटर।
ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲਸ ਇਹਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਲੋਕ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ। ਕਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਓਸੀਲੇਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਸਿਰਫ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਤੇ 2 ਕਪੈਸਿਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ठीक है, अज का अपना इन्ना ही है, अज की वीडियो च आप इन्ना ही स्टडी करांगे। ठीक है, फर्दर आप हुण पिन डायग्राम देखांगे नैक्सट वीडियो 8051 का। ओके, थैंक यू।